हेलो, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द पवेलियन। मैं हूं फख्र आलम। आप देख रहे हैं ए स्पोर्ट्स, 10 स्पोर्ट्स एंड द एयरवाइज ऐप। Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup from Australia. And today we're back in Group 1 again for another clash. आज सिर्फ एक ही मुकाबला है, लेकिन बहुत अहम मुकाबला है। उसकी वजह यह है क्योंकि डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया इस मुकाबले पे नजर गाड़े हुए हैं। आइए देखते हैं कि आज का मैच क्या है। पहला मैच और वाहिद मैच, इंग्लैंड बामुकाबला श्रीलंका। सिडनी में यह मैच खेला जाएगा। आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं ग्रुप 1 है। ग्रुप 1 के जरा पॉइंट टेबल पे भी नजर डाल देते हैं। ग्रुप 1 में सूरत हाल पॉइंट टेबल पर इस तरीके से है कि न्यूजीलैंड ऑलरेडी क्वालिफाई करके बिल्कुल टॉप पर मौजूद है 7 पॉइंट के साथ। ऑस्ट्रेलिया इस वक्त बिल्कुल उसी जगह पर है, लेकिन अगर आज इंग्लैंड अपना ये मैच जीत लेता है और छोटे मार्जिन से भी जीतता है अगेंस्ट श्रीलंका, तो उनके भी 7 पॉइंट हो जाएंगे, लेकिन उनका नेट रन रेट बेहतर होगा। उनकी विन्स जो है वो बराबर होंगी, इसलिए नेट रन रेट विल कम इनटू प्ले। एंड ऑफ कोर्स दैट इज द सिचुएशन। आयरलैंड एंड अफगानिस्तान हैव ऑलरेडी आर आउट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन। Not possible for Sri Lanka either because वो 6 points पे जाएंगे. So this is the end of the road for Sri Lanka, Ireland and Afghanistan. However, Sri Lanka would like to lead World Cup on a high that we'll be playing. And with me, I'm joined by the legends and the monuments of the game of cricket who served the game and our country really well. I've got the young and dynamic Shoaib Malik. Assalamu alaikum. I have got the Mr. Dependable, Mr. Reliable, Misbah-ul-Haq. Assalamu alaikum. I've got the toe-crushing, batsman terrorizing, the wonderful Waqar Younis. Assalamu alaikum. And I've got the legend himself, the greatest of all times, the Sultan, Wasim Akram. Good. Assalamu alaikum and good morning, everyone. So, Wasim, we're heading into Sydney today. It's another day at the ICC Men's T20 World Cup. Big game for Australia, who's not playing. Big day. Yes, it is a big day for cricket in this World Cup. एक team qualify कर गई है, rounds in New Zealand. We have seen, Fakhr ने explain किया है. And if England, very simple kind of scenario for England. If they win, they qualify. If they lose, they don't qualify. And Sri Lanka can't qualify. So yeah, Australians, not just Australian team, I suppose the whole Australia will be glued onto their television कि ये वो match देखें. और it'll be exciting game because Sri Lanka, in my opinion, have nothing to lose. Yeah. They can be dangerous. Sri Lanka is not like, say, Netherlands or Zimbabwe. उनका एक आधा प्लेयर चल पड़ा, उनका हसरंगा is in such a good nick. एक आधा 3 स्पिनर बड़े जबरदस्त हैं। और इंग्लैंड हमने देखा है चेजिंग में they're not that consistent. Right. अगर उनके stats देखे जाए तो, but when they bat first, they have enough bowling to defend. So it'll be interesting to see what they do today. Absolutely. Five games played between Sri Lanka and England. 4 won by England, 1 by Sri Lanka. But today we're in Sydney, which tends to support the spinners a little bit, though, that pitch. How do you reckon this is going to go down? Yeah, England clearly the favorite. Overall, the scoring rate from the day one in Sydney to now has big decline in that. So that shows that the weather has started getting a little better. It's a little bit warmer, and the pitches are playing their natural role, which is spin. So जब spin पे आ जाता है, तो then of course Sri Lanka कहीं ना कहीं one can say that they can really upset this game. But overall अगर देखा जाए तो जिस तरह की फॉर्म में है इंग्लैंड, और ट्रैक रिकॉर्ड भी ये बता रहा है, वर्ल्ड कप का भी रिकॉर्ड ये बता रहा है कि 8 साल पहले मेरा ख्याल है श्रीलंका एक मैच जीती थी इनसे, उसके बाद अभी तक मैच नहीं जीती। तो ओवरऑल इट्स इन द फेवर ऑफ इंग्लैंड, बट लेट्स होप के कोई अपसेट होना चाहिए। अपसेट होना चाहिए और मैच अच्छा होना चाहिए। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मिसबा, श्रीलंका केम इनटू दिस वर्ल्ड कप एज ए स्ट्रॉन्ग साइड, एशिया कप जीत कर आ रहे थे। व्हाट हैज गॉन रॉन्ग फॉर देम ओवर द पैसेज ऑफ प्ले? आई थिंक काफ़ी चीज़ें, स्पेशली उनकी बैटिंग उस तरीके से क्लिक नहीं किया, टॉप ऑर्डर में उस तरीके से वो इफेक्ट नहीं डाला उन्होंने। राजा पक्षा जो उनके मेन बैट्समैन है वो रन्स नहीं कर पाए। फिर उनके कप्तान चनाका वो भी बैटिंग में उस तरीके से इम्पैक्ट नहीं डाल पाए। और जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में रीज़न उनकी बनी है इस पूरे वर्ल्ड कप में, उनकी इंजरीज़, फास्ट बॉलर्स की जो इंजरीज़ हैं वो उनको काफ़ी जो है उन्होंने डैमेज किया है। परफॉर्मेंसेस नहीं आई और पूरा का पूरा जो बर्डन है वो 2 स्पिनर्स पे है। ना तो नए बॉल्स उनके फास्ट बॉलर उस तरह विकेटें ले पाए हैं, और डेथ में भी आके उनको स्पिनर्स को बॉलिंग करानी पड़ी है। पिछले मैच में हसरंगा ने लास्ट ओवर कराया, पहले ठीक से ना बॉलिंग कर रहा था, ऊपर नए बॉल से 2 ओवर कर रहा था वो पावर प्ले में, और वो फिर आके नीचे आके 17वां और 19वां ओवर कर रहा था। तो ये आपको
शो करता है कि उन कंडीशंस में जहां आपकी फास्ट बॉलिंग को बेसिकली लीड करना चाहिए, आपके बॉलिंग अटैक को, वहां भी आप उन स्पिनर्स पे ही सारा बोझ डाल रहे हैं। तो आई थिंक ओवरऑल यही एक रीज़न है जो मुझे लगता है कि वो जो बैलेंस था साइड का इन कंडीशंस के मुताबिक वो उस तरीके से नहीं था और परफॉर्मेंसेस उस तरह नहीं थी। वेरी ट्रू। शायद 3 फास्ट बॉलर इंजर हुए श्रीलंका के। क्या लगता है, आधे ओवरवर्क या लोड मैनेजमेंट सही नहीं है या जस्ट शेयर बैड लक? आई गेस बैड लक भी कह सकते हैं, और दूसरा जो चमीरा है उनके, वो ऑन एंड ऑफ जो है वो खेलते रहे हैं टीम में से, और इंजरी की वजह से जो है वो इन एंड आउट रहे हैं, और बैड लक आप कह सकते हैं। लेकिन जो मेजर रीज़न मुझे लगता है कि हाउ दे हैव प्लेड इन एशिया कप, तो वो कॉन्फिडेंस जो था वो था वहाँ पे। हाँ, कंडीशंस थोड़ी सी चेंज हुई, बट जो मिडिल ऑर्डर है ना वो बिल्कुल ही नहीं कुछ भी कर रहा, जिसमें राजा पक्सा है और उनके कैप्टन शनाकाब। और मुझे ये लगता है कि जिस दिन इफ वन ऑफ देम विल फायर तो ये अच्छा हो सकता है, क्योंकि कुशाल मेंडिस और जो उनके दूसरे ओपनर हैं उनमें से कोई ना कोई एक 60-70 की इनिंग्स खेलते हुए आ रहा है कंसिस्टेंटली, और ऊपर से तो काम हो रहा है। लेकिन ये जो मिडिल ऑर्डर है यहाँ पे मुझे लगता है अगर इन दोनों में से एक भी रन्स बनाएगा तो श्रीलंका विल गिव अ टफ टाइम। लेकिन मुझे लगता है टॉस इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। Oh, is it? Yes. All right, we're going to look at the pitch report momentarily and then talk about that. Kusal Pereira, Wasim, very explosive batsman for Sri Lanka up top. He's been out of action for a year. What's going on with him? I suppose he got injured. Shoulder injury हुई थी उसको last year. So since then shoulder injury को time लगता है. Depend shoulder का ये वाला मसल है, ये वाला मसल है. ये अगर पीछे वाला that takes lot of time. Yeah. About 8 to 10 weeks, and then of course आप डरे रहते हो कि अभी गया. So yeah, they missed him. और वो मिसबा ने भी कहा है, शोएब ने भी कहा है कि इंजरीज जो फास्ट बॉलर्स को उनकी इंजरी है. चमीरा was quite a consistent bowler with good pace. उससे बड़ा फर्क पड़ा उनको. So when आपके 3 बॉलर इंजर हो जाए मेन बॉलर, so कोई स्ट्रगल तो करेगा. As well. What was that about? My shoulder injury was there's a oval shape apparently bone here. वो tilt होके ligament में लग रही थी. I suppose use करके. So first 2 months in 97 में बिल्कुल नहीं county नहीं खेला. They really invested on me. I was obviously insured था with my county with Bupa के साथ. So I went to so many surgeons or shoulders, typical shoulders, proper shoulder specialists. Nottingham भी गया, I think Leeds भी गया. एक ने ट्राई किया कि इंजेक्शन अंदर सुई लगा के फ्लूइड है वो निकाला. नथिंग केम आउट. इट वाज पेनफुल बिकॉज आपको वो एनेस्थीसिया नहीं देते, आपको होश में रहना होता है. लोकल एनेस्थेटिक या नो वो भी नहीं देते. या आई डोंट नो 97 में तो नहीं दिया था. So then I found one doctor, I forgot his name, in London. I think the county did. It was at Clementine Churchill Hospital on Harrow. So he saw me the first time. He said, "This is your problem." Okay. And then he shaved that bone off. तब वो हाईटेक ऑपरेशन आ गया था जो यहाँ से करके क्या कहते हैं उसको, स्मॉल होल्स करके उन्होंने फिर ये बोन को शेव ऑफ किया था. इट टुक मी अबाउट 3 months. थ्रो मेरी 6 महीने वापस आई थी. पर उसके बाद एक चीज़ मुझे समझ लगी थी कि जब मैं थ्रो करता था आफ्टर दी ऑपरेशन, जब बाजू स्ट्रांग हो गया, थ्रो वापस आ गई, जो एम था इट वॉजंट 100%. सो अगर मैंने ये कप को मैं निशाना करना है, पहले जब करता था सीधा जाता था, तब मैं करता था तो थोड़ा राइट पे आता था. देन आई लर्न कि मैं थोड़ा अगर निशाना करना है थोड़ा 1 फुट इधर करूं तो देन इट विल फिनिश अप हियर. तो ये चीज़ें ऑब्वियसली वो एक्सपीरियंस से आती हैं. बट या इसलिए शोल्डर इंजरी को टाइम लगता है. It takes time. There is also another injury, Misbah, the tennis elbow, if I'm not mistaken, right? Which I think Sachin Tendulkar also suffered. Yeah. What exactly is that injury about? आपकी ये बेसिकली मुझे भी कुछ अर्सा ही रही है. Right. Just here? ये बिल्कुल ये जो लेगमेंट है शायद ये आपको वो जब भी आप मूव करते हैं स्पेशली वेट इवन कप उठाते हुए भी वो आप जैसे ही उसको होल्ड करेंगे तो उसको कैरी करना भी मुश्किल हो जाता है. वेट वो आपका जो है ना वो उसको उठा ही नहीं पाता आपका बाजू. तो पेनफुल होता है काफ़ी. उसके लिए अब काफ़ी चीज़ें मतलब उसको आप स्ट्रॉन्ग करते हैं एक्सरसाइजेस के साथ. फिर उसको कहीं ना कहीं वो जहाँ से इंटेक्ट होता है मुझे लगता है ऑपरेट ही करवाते हैं लोग मोस्टली. ऑपरेशन इज द लास्ट
not, am I right? Rehab करके आप कोशिश करते हैं, बहुत सारे लोगों को. Did you rehab? आपने क्या exercise? मेरा rehab से ठीक हो गया था. जैसे 97 में आपको ये शोल्डर हुआ, तो मेरी जो इंजरी थी that was a very interesting story. I don't know if you got a time. No, of course, go ahead. 92 में जब मुझे वर्ल्ड कप से मैं जब बाहर हुआ और मैं फिर वापस आ गया था, पाकिस्तान वापस आ गया था, तो आई वाज इन sheer pain, ठीक है ना. इसीलिए मैं वहाँ भी रह भी नहीं सका. ऑल्दो इमरान भाई मुझे कहते थे कि जैसे फ़खर के साथ किया हमने या शाहीन के साथ किया कि रहो, हम देख लेंगे आगे अगर हम सेमीफाइनल में पहुँचे, बिकॉज आई वाज ऑन टॉप ऑफ माई गेम एट द मोमेंट. तो मुझे मालूम था कि इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इट वाज वेरी पेनफुल. और फिर मुझे ना शटका भी जाना शुरू हो गई थी इन द लेग्स. एंड बाय द टाइम आई गॉट टू पाकिस्तान विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ वीक्स the sciatica used to go all the way to my foot, and I was really worried. Not only that I will play cricket or just to live normal functioning के लिए. So I went to lots of doctors, बहुत सारे doctors के पास मैंने in Pakistan, क्योंकि उस टाइम इतना तो था नहीं कि जी आपको overseas भेजा जाए. फिर मैं गया कई डॉक्टरों के पास, इंजेक्शंस लगाए. even I went to ये जो होते हैं ना, क्या कहते हैं इनको, दम दरूद करने वाले और हकीमों के पास. मैंने मतलब आई ट्राइड एवरीथिंग इन द नेक्स्ट 2 months. और उसके बाद फिर एक डॉक्टर ने तो मुझे, अ वेरी सीनियर डॉक्टर फ्रॉम लाहौर, ही सेड के just don't play, stop playing cricket, otherwise you're going to damage more and that might not really help you. I think you need to take a break. No, because इस तरह आप मुझे देख रहे हैं ना. I'm listening to your story. Okay, so then I came to Karachi also. I stayed in one of the hospital here also, जहाँ पे मैं 10-15 दिन, फिर उन्होंने शुआओं के साथ पता नहीं क्या क्या मेरे साथ हुआ. एंड नथिंग वॉज गेटिंग बेटर. एंड आई वॉज ऑनेस्टली, सारी मेरे घर वाले भी परेशान, मैं सारी फैमिली परेशान. एंड देन थैंक्स टू आरिफ अब्बासी साहब, ही वाज इन द बोर्ड, ही वाज आई थिंक वन ऑफ द टॉप पोस्ट पे थे. तो उन्होंने कहा नहीं, इसको मैंने तुम्हें ठीक करके रहना है. एंड ही सेंट मी टू इंग्लैंड. And Cromwell Hospital, he got me a apartment across that, and I went to the doctor का मुझे आज तक नाम याद है. I'm very thankful to. I'm not sure if he's still around or what, because he was very old then. He was around about 90 then. Wow. और and I went to see him and he examined me, वो जो भी जिस तरह examine करते हैं. And the first thing he said to me, no problem, we will fix you. It's no issue at all. Wonderful. And I'm like, do you know that for the last 3 months, 4 months, how painful it has been, और जिस तरीके से मैंने गुजारा और जो मैंने चीज़ें सुनी हुई हैं, and you saying it will be fixed. And he says, mate, it's normal. Australian था वो, working in Cromwell Hospital. He called me up next morning and he not operated me, but he made me sleep. He gave me anesthesia and he put some serious injections in my lower back. Right. Where when I woke up, I was not, I couldn't feel my legs. Right. मैंने कहा ये तो पुट्ठा काम कर देता है, because I couldn't feel my legs. And he came to see me and he checked me afterward and he says, yeah, you're good to go. And he says, first 5 weeks, I want you to just walk with the pain. दर्द उसी तरह होएगी, but I want you to push yourself for 5 weeks. And I did that. I took a lot of painkillers those days, and I walk. And then he says, after 5 weeks, pain abhi bhi thi, and he says, now you go and play. Now you go and train hard and play. And I'm like, what? With the pain? Literally. Wow. And then I started training. Then तो जब आपने ट्रेनिंग शुरू की थी विकी, पेन का स्केल क्या था from 1 to 10? मतलब कि उस started off 10 when you had, जब मैं था उस वक्त तो बहुत पेन थी, और इवन जागने के बाद भी मुझे बहुत पेन थी, और वॉक में भी बहुत पेन होती थी. बट आई यूज्ड टू पुश माई सेल्फ. लेकिन जब तक वो 4-5 वीक हो गए ना, तो थोड़ी ईज आउट होगी, से 5% 5 पे आ गई थी, फ्रॉम 10 to 5. एंड देन थैंक्स टू आरिफ अब्बासी साहब अगेन, ही सेंड मी टू अनदर, सरे में एक ट्रेनर होता था, टिम लेस्की उसका नाम था. उसके पास लिटरली मैं उसके पास जाके रहा फॉर नेक्स्ट 6 weeks बिफोर 1992 इंग्लैंड टूर. और उसने फिर जो मेरे साथ किया वो इट्स हार्ड टू एक्सप्लेन. उसने मुझे रगड़ा दिया वो 6 हफ्ते, जो फिर मुझे पहाड़ियाँ चढ़ाई, उसने मुझे ट्रेनिंग कराई. And by 3rd week, and I felt, okay, now I'm ready. And then that 6 weeks of training really did me so good कि आज तक उसके बाद फिर मुझे पेन नहीं हुई. And then I played in 92.
92 series, जो बड़ी famous series and very interesting story. But I must say I think मैं जब क्रिकेट खेले जितना भी मैं 19-20 साल पाकिस्तान से, I think now chairman के 10 chairman और पता नहीं कितने coaches blah, but आरिफ अब्बासी साहब के बारे में मैं एक बात कहूँगा कि since I was a kid came into the side, he was involved with किसी ना किसी उसमें PCB में, बट उनकी एक क्लास ज़रूर थी कि वो कोई भी लड़का हो उसकी बात जरूर सुनते थे, कोशिश करते थे कि क्रिकेटर्स की फेवर हो. He was very approachable. He was very approachable. आप उनके साथ बात करते थे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं आपके साथ दोस्त के साथ बात कर रहा था. And he used to listen to you and he used to do what you tell him because he knew कि जी आप क्रिकेटर हैं, आप बेहतर जानते हैं, आपकी एक्सपर्टीज है. I'm here to facilitate you. That's fantastic, and that's the kind of people we need. We need people who can communicate in all aspects of the game, in the organizational matters of the game, whether it's Pakistani cricket or in any other organization in Pakistan. And with that, it's time for us to take a break right here on the Pavilion. When we come back, we'll talk more about the Group 1 game coming up. Don't go away. Keep watching. All right, welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching Sports 10 Sports and the ARY's app. There was a nice package there about the Sri Lanka-England game that is coming up just in under an hour now for all of you guys right here live. I've got with me Shoaib Malik, Misbah-ul-Haq, Waqar Younis and Wasim Akram. Break में जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे injuries की कि Sri Lankan fast bowlers को injuries हुई, and then we spoke about Wasim's injury, Misbah's injury and Waqar's injury. I believe, Shoaib, you've also had an injury. Would you like to share that story with us quickly? If we have time, I guess. Yes, we do. As I mentioned the other day, I started keeping as well क्योंकि मेरे एक्शन का जो मसला था वो सिर्फ यही था कि मुझे स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ और मैंने फिर भी थ्रो किए. तो वो जो कोई अभी वकार भाई बता रहे थे कि कोई एक छोटा सा चिप जो थी वो टूट गई थी, बोन चिप, तो वो यहाँ फंस गई. तो ये मेरा पूरा एक्सटेंड नहीं होता था आर्म, तो वो मसला हो गया एक्शन में भी. तो अब बॉब बुलमर, लेट बॉब बुलमर, उन्होंने कहा कि एक्शन क्लियर होना चाहिए. तो मैंने कहा वेल आई हैव दिस इंजरी and I have this issue, I don't know how we can fix this. So then he spoke to one of the doctor in South Africa, Cape Town, जहाँ पे वो रहता था. तो उसके सारे स्कैन उसने भेजे और उसने कहा कि इसको ना ले आओ यहाँ पे. तो इंडियन टूर से वापस आए. सो बॉब बुलमर साउथ अफ्रीका जा रहे थे और उन्होंने कहा कि यू आर गोइंग टू स्टे एट माई प्लेस, आई एम गोइंग टू टेक यू टू द डॉक्टर, और ये इसी दफ़ा में सर्जरी होगी. और फिर मैं गया वहाँ पे, सर्जरी हुई. बट थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू हिज फैमिली, दे रियली लुक्ड आफ्टर मी, और it was a big thing for me. This is now, you know, I'm sorry, it's a little off topic for a minute, but I want to engage into this क्योंकि ये conversation चल पड़ी है. इस वर्ल्ड कप से पहले भी हमने सुना शाहीन शाह अफरीदी की कि जी वो एक I don't know if it was a rumor or what was the misunderstanding कि वो अपना टिकट लेके और अपने खर्चे पे खुद चले गए इलाज करने पे. इधर बॉब बुलमर ने कहा कि आप मेरे घर पे रहेंगे, उधर आपको जो है वो आप ट्रेनर के पास जाके रहे and all that. I mean, you are assets and I am the cricket board. And when you go out there and you perform excellent and you win, I look good. Therefore, I'm going to invest in you and take care of you, right? So, what is going on here? Am I missing something here? Is it not part of the contract? क्या चक्कर है? In an ideal world, that should be the case. Right. कि जैसे, for instance, आप शाहीन की एग्जांपल ले लें. वो आपका एक ऐसा क्रिकेटर है जो कि आगे जाके पाकिस्तान से कम से कम 15 से 18 साल खेलेगा और दुनिया का बेहतरीन बॉलर है. उसकी जब डिले हुआ 2-2.5 हफ्ते, जाके उसको स्ट्रेट अवे अगर भेज देते, सो उससे एक अंग्रेजी का मुहावरा है, टू मैनी कुक स्पॉइल द ब्रॉथ. नोबडी वाज देयर फॉर मेक अ डिसीजन कि ये जाए का ना जाए. इट्स नॉट अ कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन. वंस योर मेन एनीवन पाकिस्तान टीम में इंजर है, अगर यहाँ पे फैसिलिटी नहीं है, जस्ट सेंड हिम अब्रॉड. Get him an accommodation. Get his appointments done. That's the cricket board में 800 बंदा है. Sorry, Wasim, I'm interrupting you there, but apparently बाद में PCB ने बोला कि जी नहीं, वो हम उनको reimburse कर रहे हैं. But I'm just saying इसके अंदर ये फिर एक और सवाल है कि जब हमने उनको वर्ल्ड कप पे लेकर ही जाना था, तो फिर ये 2.5 हफ्ते का लेट जो डिले हुआ, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि जब आपको पता है भी वर्ल्ड कप आ रहा है and time is of essence, they should have been on that immediately. Anyway, I mean, I'm not blaming anybody. I'm just saying this is very in your central contracts, does it say that the cricket board will spend the money to send you for treatment? You're insured. They give you a contract half an hour before the tour. Still do. Ask them.
Seriously? Last time I signed a contract while being on my trip to wherever we were going on a tour. On a tour. वो last page पे, I guess you just sign that last page. You don't know कि बाकी pages पे क्या लिखा हुआ है and all that. I don't know. Maybe things have changed now, but I have no idea. Okay, that is, by the way, legally unethical. You're supposed to give the other party, अगर आप किसी के साथ contract कर रहे हैं, full and equal opportunity to go through the contract, consult with their lawyer or their legal team and give them ample time. That almost borders on slavery, basically, you know. कि जी मैं जबरदस्ती बस कर दे, तू sign कर दे, तू काम करना नहीं करना, sign कर दे. That doesn't work. That's not right. मेरा जो था, everything was taken care by Pakistan Cricket Board, even though I stayed at late Bob Woolmer's house, but मेरा जो सर्जरी का सारा खर्चा या Okay, so it was paid by the Pakistan Cricket Board. Pakistan Cricket Board. मैं थोड़ा सा इस पे ऐड ऑन करना चाहूँगा. शाहीन का जो केस हुआ है, it shouldn't have happened. Simple as that. क्योंकि you know आजकल सोशल मीडिया का भी ज़माना है. You know, media is really active. So ऐसी चीज़ होनी नहीं चाहिए. फ्रस्ट्रेशन हुई शाहीन को फ्रस्ट्रेशन हुई जिसकी वजह से वो ही लेफ्ट फ्रॉम देयर बिकॉज ही वाजंट गेटिंग बेटर. वो उसको कैरी भी इसलिए टीम कर रही थी कि क्योंकि टीम के साथ डॉक्टर भी है, फिजियो भी है, ट्रेनर भी है. दे ऑल देयर एंड दे वर होपिंग कि दे विल फिक्स इट एंड इट वाजंट गेटिंग बेटर. तो उस फ्रस्ट्रेशन में शाहीन जस्ट लेफ्ट एंड ही सेड आई एम गोना गो एंड आई एम गोना गेट माई सेल्फ फिक्स्ड. तो वो एक गुस्सा का थोड़ा सा एलिमेंट उसमें था. एंड आई थिंक ये फेडरेशन के बीच में रहना चाहिए. इट शुड नॉट गेट आउट ऑफ दैट. आई मीन इसमें कम्युनिकेशन गैप है या सडनली अगर कोई उठ के जाता है तो इट शुड हैव डन दैट फर्स्ट ऑफ ऑल. और दूसरा है कि अगर गया था तो फिर उसमें आपने मीडिया को इन्वॉल्व कर लिया. आपने मीडिया को कह रहे हैं जी मुझे टिकटें नहीं मिले, मुझे डेली नहीं मिली, मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला. सो आई थिंक इट वॉज ऑल वेरी वेरी मैसी फ्रॉम बोथ एंड, फ्रॉम शाहीन ऑल्सो. बट ऑफ कोर्स क्रिकेट बोर्ड आई थिंक देयर लॉट मैनी ऑफ देम. देयर इज डॉक्टर अब जो हमने हायर किया हुआ है वो ऑस्ट्रेलिया से है, साउथ अफ्रीका से अगर आपका आया हुआ है. तो अगर उन्होंने ये रीड कर लिया था कि ये उनके बस का नहीं है या उनसे आगे है या ये इसको इंग्लैंड जाना चाहिए, तो यस ही शुड हैव बीन गॉन लॉट अर्लियर दैन क्योंकि अभी जो भी वर्ल्ड कप में फिर वो आया है तो ही वाज नॉट 100%. सिंपल इज दैट. Sorry. मुझे ये नहीं समझ आती कि अगर किसी को इंजरी होती है एंड आई गेस वी हैव एवरीथिंग जो जहाँ पे स्कैन्स होते हैं और पता चल जाता है कि ये मसला है, बट वाई वी हैव टू सेंड आवर प्लेयर अब्रॉड? वाई नॉट जो हमारा NHPC है वहाँ पे क्यों नहीं प्लेयर्स जो है उनकी रिहेबिलिटेशन या जो भी मसले हैं वहाँ पे? चेयरमैन ने कहा है, आई सॉ रेड समवेयर he wants to invest a proper rehab center at the National High Performance Center. And also we need to hire people क्योंकि मैं यहाँ पे फैसल जो है, फैसल हयात फिजियो थे, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ बहुत अच्छा रहे हैं और he is very good and he is from Pakistan. He knows his job and मतलब ऑस्ट्रेलिया से वो उन्होंने सारी अपनी डिग्रीज ली हैं और आई गेस वी नीड हिम क्योंकि मैं सिर्फ नहीं, अगर आप मिसबा भाई से पूछेंगे या आप किसी भी प्लेयर से पूछेंगे तो वो आपको यही बोलेंगे कि यार ही इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. वो भी फ्रस्ट्रेट होकर यहाँ से निकला है, जो दुबई गया है या मूव कर गया यहाँ से, वो भी यहाँ से फ्रस्ट्रेट होकर नहीं, उसके भी बहुत सारे issues थे. So I think that this is such a Pandora's box. I know each and every. He was the best. Okay, I can hear it from two recent players or current players that he was the best and he's not there. If you call more current players, they'll be saying the same thing what we are saying. I work with him. And Waqar has worked with him, and Waqar is saying that he left because he got frustrated. This is the Pandora's box. मगर बात वहीं पे है ना कि आप अपना जो कोई भी बंदा होता है वो जितना मर्जी आपका कैपेबल हो उसको आप जो है वो बड़ा नॉमिनल सी एक सैलरी देते हैं और थोड़े पैसे देते हैं, उसके थोड़े सी भी आप वो बढ़ाते नहीं हैं. और जब आपको बाहर से फिर मंगवाना पड़ता है वही बंदा, तो वो फिर आप उसको डबल ट्रिपल देने के लिए भी तैयार डॉलर्स में पे करते हैं. तो और ये हमारे लिए बाय द वे ऑलरेडी अगर हम अपनी मईशत को और इकोनॉमिक चैलेंजेस को देखें तो इस वक्त हम वैसे अपने डॉलर्स को वी ट्राइंग टू सेव एज मेनी डॉलर्स एज वी कैन एंड ट्राई टू पे इन लोकल करेंसी एज मच एज वी कैन. That's off the track. Yeah, but it makes sense because look, if you keep on putting these small little pressures into the sorry.
you're opening another Pandora box. Yeah, that's a Let's different not Pandora. get That's into a very different Pandora's box. That's not our Pandora. Yeah, that's not your Pandora's box. Definitely not. प्लेयर्स की जो बात हो रही है, जब आप उनको स्टेक होल्डर्स समझेंगे, अपने बराबर समझेंगे और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी भी पार्टी के साथ, जब आप उनको अपने समझेंगे कि ये हम इनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, उस तरीके से उनको ट्रीट करेंगे, तो फिर यही होगा। लास्ट मिनट पे ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा जी, साइन कर दो, मतलब आपने वो पढ़ी नहीं है कोई चीज़ें, तो वो बड़ा मेरी समझ में ये नहीं आता कि उसमें भी कसूर क्रिकेटर्स का है। है दोनों पार्टियों का। भाई आपने बताना वो अगर आप अपने प्रोडक्ट का ख्याल नहीं कर, मेरी एक फैक्ट्री है और ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं यही कह रहा हूँ, तो ये मेरा प्रोडक्ट है, अगर मैंने इसका ख्याल नहीं रखना या इसको कंफर्ट नहीं, इसको जो चीज़ें चाहिए वो प्रोवाइड नहीं करनी, मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं नीचे आके उनसे ताल्लुक बनाऊं और उनको वो चीज़ें प्रोवाइड करूं। जबकि हमारे यहाँ ये होता है कि जी नीचे वाला हर वक्त जी तरले कर रहा होता है ऊपर के, जी यार हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। इवन बॉलों का इशू है यार, कम ऑन फखर, बाकी तो आप छोड़ देना। नहीं, मैं तानू नहीं कह रहा आपको, मैं सिर्फ बट आई नो व्हाट यू से। और आपने सही कहा कि आपका प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी कंट्रोल होनी चाहिए, प्रोडक्ट होना चाहिए, आपको उसके ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें भी एक्स प्लेयर्स, प्रेजेंट प्लेयर्स, हमारे से पहले के प्लेयर्स, आई सपोज कसूर उनका है, सब हम सबका है, बिकॉज प्लेयर्स एसोसिएशन बनती, ट्रस्ट होता, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है, इंग्लैंड में है, साउथ अफ्रीका में है, न्यूजीलैंड में भी है। एवरी कॉन्ट्रैक्ट गोज टू द प्लेयर एसोसिएशन के जो हेड है, दे गो थ्रू इट। प्लेयरों के पास से पहले वो अपनी शर्तें पहले बताते हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, ये चेंज होगा। मैं आपको किसी दिन अपनी वो पुरानी फेमस रिपोर्ट जो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि दिखाई जाए, रिपोर्ट बताई दे, क्या लिखा वो आपको दिखा दूंगा, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जो आपने रिपोर्ट दी थी। यू नो दिस इज अनफॉर्चुनेटली द केस, बिकॉज वो एक दफ़ा मैं इलेक्ट हुआ था ऑल पाकिस्तान प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन का चेयरमैन, हमारी फिर वो एक एक्टर्स कलेक्टिव की भी है पूरे का पूरा एसोसिएशन, एक म्यूजिशियंस की भी है। So I'm a member of all three, but here's the thing, nothing gets done because nobody trusts nobody. और वो एक बंदा सब आपको बताते हैं यार ये नहीं होने देना, आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करें, फिर एक बंदा पीछे से जाता है, वो जाके अपनी डील करके जो है कहता है यार मेरा तो कम हो गया, मैं चला अपना काम करने के लिए, and that's how it never gets fixed as well. यही होता है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, यही होता है ना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, बस यही है। इसके ऊपर मजीद बात करेंगे आज शाम को। We'll talk about this after the game today because I think it needs to be addressed properly. Alex Hales has been a very important component of the English batting line. I mean, he's had his troubles, but he is back, and we've got a package on him. Let's take a look. All right, there you have Alex Hales. We've seen very interesting packages. Made a mistake, worked hard, fixed himself, brought himself back into the team, and the team integrated with him. They forgave him and moved on. Absolutely. He's done his time. He realized he had a problem. He worked on it. मैं हमेशा कहता हूँ, वो कहते हैं ना कि फर्स्ट स्टेप इज टू एक्सेप्ट देयर इज अ प्रॉब्लम एंड देन द प्रोसेस स्टार्ट्स। एंड दे आल्सो इंग्लैंड थिंक टैंक और सारे लड़कों ने रियलाइज किया कि ही हैज़ इम्प्रूव्ड एज फार एज हिज बिहेवियर कंसर्न। ही इज़ वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, प्लेड लीग्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो ब्रिलियंटली डन बाय इंग्लैंड थिंक टैंक दैट उसने गलती मांगी, उसने टाइम काटा और नाउ इज बैक। So वो सारे भूल गए हैं, that's the way it should be. Yep, and now it's all about how his bat does the talking on the park. And with that, we're going to take a break right here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Don't go away. Keep watching our A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड द ARY Zap app, and we are getting ready for the action in Sydney. It is Australia who is going to be watching this game very closely because England, if they win, they go to the semis, and Australians must be praying that Sri Lanka win this one. Let's take a look at the pitch. We've got the pitch report brought to you by Ensure. Well, there you have the pitch. Shoaib, you said कि यहाँ पे टॉस जीतना बड़ा ज़रूरी होगा। बहुत ज़रूरी है, और जैसे उन्होंने बताया कि इस पे आई गेस थर्ड मैच होने जा रहा है, और साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान का मैच भी इसी पिच पे हुआ था। कुछ डार्क एरियाज़ भी हैं जहाँ पे, जिसको कहते हैं कि रफ़ एरियाज़ हैं, और आई गेस टॉस इज़ गोइंग टू बी वेरी क्रूशल ऑन दिस ट्रैक। और डोंट फॉरगेट, जब प्रेशर पड़ता है तो बड़ी बड़ी टीमें हिलती हैं, और सारा प्रेशर जो है वो इंग्लैंड पे है। ये देखें, वो जो डार्क एरियाज़ की वो बात कर रहे थे नासिर हुसैन, तो उस पर मुझे लग रहा है कि बॉल टर्न होगा, इसीलिए टॉस जीतना इंग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड गेम,
और I would say whoever wins the toss has a 80% of chances और winning the इंग्लैंड के game. स्पिनर्स ने अभी तक कोई खास चमत्कार नहीं दिखाया इस वर्ल्ड कप में। आदिल इज विकेटलेस। आदिल ने नहीं हाँ एक कोई विकेट नहीं ली 3 मैचों में। मोइन अली ने सिर्फ 1 ओवर किया है। सो आप लोगों ने बिल्कुल जैसे नासिर हुसैन ने बताया कि डार्क पैचेस इट मींस पिच लुक्स टायर्ड, थकी हुई पिच लग रही है इन अ वे कि इट मींस कि यहाँ बॉल डेफिनेटली घूमेगा। और इनका चेजिंग का जो रिकॉर्ड मैंने बताया आपको इंग्लैंड का इज़ नॉट दैट ग्रेट। आई मीन चेज में ये 12 मैचों में से 3 जीते और 9 हारे हैं। ठीक है जबरदस्त। अब उन्होंने क्या आपने हाथ उठाया था क्या आपको कोई पॉइंट आया हुआ था? वो यही तो नहीं था। मेरा पॉइंट ये था कि ऑस्ट्रेलिया विल बी हैप्पी टू सी दिस पिच एंड दे विल बी होपिंग कि जो पॉइंट है वो श्रीलंका की साइड पे गिरे। पिच तो काफ़ी थकी हुई लग रही है, सो इट विल बी a testing time for England. It would be, but Waqar, I want to ask you. Yesterday, जब हमने अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच देखा, the body language from the Australian side, especially after losing the toss, really was very different from that point onwards. I mean, they did go on to win that game, but they weren't looking very happy in the field. Is that a possibility if England lose the toss here? They're going to be under a lot of pressure. I mean, there will be a tiny bit. I don't think there will be too much of a pressure because they are a very fine side. They're one of the favorites, don't forget. तो मेरा नहीं ख्याल उतना घबराएंगे टॉस पे, क्योंकि अगर टॉस पे अगर आप घबरा गए तो आप खेलेंगे कैसे? तो आई थिंक they will be geared up for this match. और yes, थोड़ा सा एज श्रीलंका को ज़रूर जाएगा। उनके स्पिनर्स definitely England से better हैं। All right, we've got Sam Curran with us right now. Let's listen in. All right, there he had Sam Curran there. मिसबा, हम ये बात कर रहे थे कि पिच बड़ी जो है वो टायर्ड है। सिडनी में स्पिन का जो रिकॉर्ड है वो भी बड़ा फेवरेबल है। उसके बारे में आप ज़रा बताइए हमारे देखने वालों को। आपके पास है ना वो? मैं आपको दे रहा हूँ, आपको इसलिए दिया। मेरे पास वो सफर आज अगर आपको कह दिया बताने के लिए तो आपसे वो देखिए ऑब्वियसली स्पेन बड़ा जो है ना। चलो जी, सबने अपने अपने पर्चे खोल लिए। नहीं, लेकिन I feel like आप जाएं 3rd पेज पे प्लीज। वैसे ही बता देता हूँ, एवरेज बताने की जरूरत I feel like a teacher in a class of extremely naughty and आप लोगों ने अपना होमवर्क किया हुआ है कि नहीं? ओवरऑल अगर आप देखें जिस किस्म की पिच आज भी नज़र आ रही है, यहाँ पे स्पिन का रोल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिडनी में। और इसी वजह से पहले बैटिंग भी ज़रूरी है कि पिच को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो भी वो सेकंड इनिंग में है स्पिनर्स को ज़्यादा हेल्प मिलती है और स्लो हो जाती है, फुट मार्क्स होते हैं, कहीं ना कहीं रनिंग होती है, थोड़ा बहुत वो स्लो उसकी तरफ दोबारा चली जाती है स्पिन। तो आई थिंक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली मुझे लगता है कि श्रीलंका के लिए ये एक ब्लेसिंग है कि यहाँ पे खेल रहे हैं उनके अगेंस्ट। बट एट द सेम टाइम थोड़ा सा ये भी है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। ये और इंटरेस्टिंग मैच होता अगर श्रीलंका की भी क्वालिफिकेशन इस मैच पे डिपेंड कर रही होती। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, स्पिन बॉलिंग एवरेज सुपर 12 में सिडनी की आपको बताते चलें कि सिडनी में स्पिन बॉल एवरेज जो है वो 18.30 रही है, होबार्ट में 23.66 मिसबा और पर्थ में 24.05। अगली दफ़ा पढ़ के आइएगा प्लीज। ये देखें ये निकला हुआ। गुड बॉय। आई विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर दैट। थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट टाइम अगर हम जब इंशाल्लाह शो करेंगे ना तो इधर एक और चेयर रख के मजर को बिठा लेंगे। हाँ, मजर। ये आपको कागजों का भी इतना मसला नहीं होगा। यस, एब्सोल्युटली। सो विन द टॉस एंड बैट फर्स्ट। Of course, bat first. Of course, and put up a total and then defend. If it's for Sri Lanka, yeah, right? बिल्कुल। I think so far जो मैचेस हुए बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है सिडनी में। ये वो बात ठीक है, वो सही बात है, लेकिन ये है कि अगर सर गिर गया या अर्ली ऑन आप बिल्कुल गिव अप कर गए कि टॉस पे भी आपका एकदम मोराल नीचे चला गया तो देन यू गोइंग नोवेयर। श्रीलंका का ये है कि वो जो मिसबा ने बात की है ना कि श्रीलंका अगर बीच में होती मैच में, फिर मैं कहता कि इंग्लैंड के पास ज़्यादा चांस है, क्योंकि इंग्लैंड फिर बहुत दोनों मोहतात खेलती है और जब मोहतात खेलने में मुझे लगता है कि इंग्लैंड को थोड़ा ज़्यादा एज होता। बिल्कुल। लेकिन अब क्योंकि श्रीलंका बाहर है, श्रीलंका हैव गॉट नथिंग टू लूज, सो दे माइट जस्ट कम आउट एंड just play that fearless cricket with them, and that can be damaging. Very dangerous. They can officially go berserk. Yes, they can officially go crazy. Well, right now we've got Chamika Karunaratne with us in the Sri Lankan camp. Let's listen in. All right, there you have it. Now we're going to take another break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports and Sports and the Airwise app. We'll see you on the other side.
Welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. We've got a Sydney game coming up. It is England clashing with Sri Lanka. And before we carry on, let me ask you this, Waqar. Chris Silverwood, who is right now the Sri Lankan coach, was recently the England team coach. एक कोच जब एक टीम से दूसरी टीम में जाता है, does he have all that inside knowledge कि किस लड़के की क्या प्रॉब्लम है, क्या वीकनेस है, क्या एक्सप्लॉइट करना है, does he tell it to the new team कि इसको ये करना है, इसको यहाँ पे फंसाना है, इसको ये करना है? इस लड़के की फर्क पड़ता है? हाँ, इस लड़के की या किस पर्चे की? नहीं, उससे फर्क पड़ता है। जैसे अभी रिसेंटली रिटायर हुआ सिल्लू, जैसे इसने पूछा, वो बताएगा जाके कि इसकी यहाँ वीकनेस है, यहाँ स्ट्रेंथ है। Yeah. I think they do. Got to. आप बताते हो, इवन आप जब लोकल कोई टूर्नामेंट जैसे ऑस्ट्रेलिया में जाते हो तो आप ऑस्ट्रेलियन कोच हायर करते हो, लोग श्रीलंका जाते हैं, श्रीलंकन कोच हायर करते हो, सो दे डोंट गो एंड टेल व्हाट हैपेंस इन द ड्रेसिंग रूम, और जो उनके जो वर्क एथिक्स हैं, जो आपके अपने भी एक एथिक्स है ना, यू हैव टू कीप दैट, बट ऑफ कोर्स आपको वीकनेसेस पता होती हैं, दैट्स यू वांट टू टेल देम कि लुक दिस इज़ वेयर यू वांट टू बॉल हिम, और ये भी कई दफ़ा होता है कि जब आप उनको बताते हो तो उसने वो अपनी फिक्स कर ली होती है वो प्रॉब्लम, सो इट कैन गो द अदर वे आल्सो। सो आई मीन कोचिंग जॉब इज़ नॉट ईजी, सो आई एम श्योर थोड़ा बहुत डिस्कशन ज़रूर होती है। So you basically also, as a coach, as the head coach of the team, would have also the psychological profile of each player, right? So you know किस तरह सोचता है कि ये सोचता कैसे है, इसकी क्या चीज़ है, क्या चीज़ इसको एंटेगनाइज करती है, क्या चीज़ इसको। अब इतना दूर क्यों जा रहे हैं? PSL में देख लें, अब जब प्लेयर्स डिफरेंट टीम्स में खेलते हैं तो जो भी कोचिंग स्टाफ है, इवन प्लेयर्स, वो बताते हैं आप पाकिस्तान टीम के अगर 15 प्लेयर्स हैं तो वो डिफरेंट फ्रेंचाइजीज में हैं, राइट, तो वो दे डू टेल कि ये इसके ये वीकनेसेस हैं, ये इसकी स्ट्रेंथ्स हैं, सो इट्स अ प्रोफेशनल जॉब। It is. But I'm just wondering what Chris Silverwood has taken into the Sri Lankan camp, and how much is that going to have an impact on today's game against England? I don't know what he has told about the England team. He's won the Asia Cup just recently, so he's done something really good with them. I think good work was done by Mickey Arthur. उसने वो जो यंगस्टर्स लेके आया था, एंड जो हम बात पहले भी कुछ दिनों से बात कर रहे हैं ना कि उसी पॉलिसी को आगे लेके चलना, वो उन्हीं प्लेयर्स को उसी मेथड के ऊपर वो आगे लेके गए, एंड ही हैड द सक्सेस। यस, दे आर आउट ऑफ दिस टूर्नामेंट, बट ये इंग्लैंड की कुछ ना कुछ तो वो बताएगा। आई होप इट वर्क्स। Yeah, it is going to count a lot. Wasim, what does it actually help? You know, you've been a mentor for the Karachi Kings team. Does it actually help जब आप किसी अपने लड़के को बताते हैं कि यार देखो उसका ये इशू है, तूने जाके यही करना है, उसको उसकी टांग पे जो है तुमने फंसा के रखना है बॉल इधर की। यह पूरा प्लान होता है। जैसे ये बात कर रहे हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस बाबर हमारा कप्तान है। I'm just going to have to interrupt you there. We're going to cut across to Sydney where both the captains are walking out for a toss. Let's listen in. जनाब, सिडनी से खबर, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है, which means they're going to bowl second now, and we're going to talk about that in a moment. But Wasim, you were saying that you have a plan for every player that you discussed with before this toss happened. स्टैट्स वाला बंदा भी होता है, कप्तान भी होता है, फिर आपका कोच भी होता है, फील्डिंग कोच, असिस्टेंट है, हमारे पास मसरूर है जो लोकल लड़कों का बताता है, फिर बाबर जब आता है, या जो भी इमाद आमिर, जो भी हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, वो दूसरे पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में बताते हैं मीटिंग्स में, बिकॉज पिछले साल कुछ अच्छा नहीं बताया उन्होंने। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक कुछ ज़्यादा ही बताते हैं। इसीलिए कह रहे थे लिख के रखना। अच्छा, ये जुमला उन्होंने नोट किया हुआ था। ओह, ये अपना भी लिखा हुआ था कि ये जवाब। बाटा जी आगे ने पहले तो गेम बनाया इसी ताड़े थे हमला करने लगी। मैं पहले ही समझ गया था कि कुछ हो रहा है। प्रॉमिस ना, मुझे क्या पता था उन्होंने ये जवाब दिया। जो भी है आपने, लेकिन आपने सेटअप जरूर बनाया। पहले 4 गेंदें ऑक्सीजन के बाहर करा के। Great setup by him. That's a setup. In his defense, I walked into it. That is true. Okay, right. Sri Lanka playing 11 आपकी स्क्रीन पे आ रही है, and Waqar, take us through. Okay, Sri Lanka, the top 3 the same. I mean, Dilanja last game played really well. ये तीनों बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं। राजा पाक्सा के जो अभी मलिक बात कर रहा था कि उसका चलना बड़ा ज़रूरी है, शनाका का चलना ज़रूरी है। बॉलिंग इनकी स्पिन तो आई थिंक दे डूइंग अ डिसेंट जॉब, बट इट्स जस्ट द पेस। अर्ली ऑन राजथा ने बॉल अच्छे बॉल किए, स्विंग भी किया थोड़ा बहुत, बट बॉलिंग थोड़ी सी वीक ज़रूर है। लेकिन इस पिच पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि स्पिनर्स विल प्ले बिग रोल, दीज 2 बिग बॉयज़, एंड देन ऑफ कोर्स धनंजय, the 3 spinners there. All right, and England, Misbah, take us through.
बटलर, हेज, मलान, ऑब्वियसली बटलर हेज फॉर्म में वापस आए एंड देन स्टोक्स, ही नीड्स टू स्टेप अप, अभी तक परफॉर्मेंस नहीं आई। ब्रुक्स ऑब्वियसली ज़बरदस्त प्लेयर हैं, मोइन अली हैं, फिर सैम करन, वॉक्स, राशिद का बहुत बड़ा रोल होगा यहाँ पे इस पिच पे, एंड देन वुड ऑब्वियसली द वे ही इज़ बॉलिंग स्पेशली अगेंस्ट श्रीलंका, पेस जो है वो मैटर करती है टेकिंग विकेट्स। Yeah, you look at that batting lineup that England has. It has a full potential कि अगर श्रीलंका के स्पिनर्स डोमिनेट करें भी और अच्छा टोटल लगाएं भी, they can chase it down. But we come back to your point, Wasim, that they have a very sketchy history when it comes to chasing targets. Yeah, especially knockout matches, do and die for England. If they don't win, they don't qualify for the World Cup semi-final. So that adds extra pressure team पे. मुझे लगता है कि एन मॉर्गन के जाने की वजह से बहुत फ़र्क पड़ा है। वो ऐसा बैट्समैन था बीच में जो स्पिन को बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराता था। वो जिस तरीके से आके रिवर्स स्वीप, एक्स्ट्रा कवर, बड़े शॉट्स वो मारता था, उस तरीके से जहाँ पे थोड़ी सी स्पिन हो रही थी बॉल, वहाँ पे उस तरीके से ये इंग्लैंड की बैटिंग लाइन अब डोमिनेट नहीं कर पा रही। अब बटलर का खेलना बड़ा ज़रूरी है, वो ऐसे बैट्समैन अनकन्वेंशनल शॉट्स खेलते हैं और वो अंडर प्रेशर करते हैं स्पिन को। सो आई थिंक हिज रोल विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओपनिंग पार्टनरशिप लगनी ज़रूरी है इंग्लैंड की। अगर ओपनिंग पार्टनरशिप लगेगी तो नीचे वाले लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, लेकिन अगर ओपनिंग पार्टनरशिप ना लगी, रिगार्डलेस ऑफ द टोटल ऑन द बोर्ड, it's not going to be easy for England. So what number you guys should think Ben Stokes bat, because he hasn't shined in this tournament as yet? He should bat around number 6. And they're sending in number 4. Yes, number 4. I think Brooks should bat at number 4. I agree. Should be. Waqar, now ये तो हम इंग्लैंड की बैटिंग की बात कर रहे हैं ना, but let's not forget that Wood and Wokes, these guys have been bowling really well, and the Sri Lankan batting top order is going to be tested as well. Okay, it's fine. It's a used wicket. It's going to spin more. But the English bowling attack is capable of taking on any batting lineup. Yeah, Wood I think will be pretty dangerous for Sri Lanka, क्योंकि वो उसकी पेस जो है वो तो किसी भी सरफेस पे मुश्किल डाल सकती है। उसने सारी टीमों को मुश्किल डाली है, तो आई थिंक वो है नया बॉल बड़ा क्रूशल होगा। हमने देखा है कि स्टोक्स नया बॉल करते हैं, स्विंग करते हैं। अगर तो थोड़ा बहुत स्विंग हुआ और अर्ली विकेट्स मिल गई तो फिर तो इंग्लैंड विल डोमिनेट दैट गेम। 150-155 से ज़्यादा अगर रन्स हो गए, then England is in problem. Yeah, then England is in problem. There you have it. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. When we come back, it's time for the expert predictions. Don't go away. Keep watching. All right, welcome back to the Pavilion. I'm Fakhr. You're watching Sports 10 Sports and the Airwise app. Our continued coverage of the ICC Men's T20 World Cup. Sydney, it's where it's happening. Sri Lanka won the toss and elected to bat first. And it's time for expert predictions brought to you by Olivia. All right, time for the expert predictions. And let's start off, Shoaib. नहीं, आज ऐसे करते हैं कि मैं मिसबा भाई के लिए करूँगा, वो मेरे लिए करेंगे. And same goes for Wasim bhai and Waqar bhai. All right. So let's start with you then. आप मिसबा के लिए क्या कह रहे हैं? मिसबा is thinking. पहले तो he's going to take at least 2 minutes. तू सीधे तो. दस दियो मैंने मिसबा के लिए क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं आप? श्रीलंका. Okay, मिसबा आप क्या कर रहे हैं शोएब के लिए? इंग्लैंड. ऑल राइट. आगा जी आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाटा के लिए? वो कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं इसके लिए श्रीलंका ते बाटा जी तुसी आगा जी ਲਈ England. Okay, so what we have here now, when you look at this, is Shoaib Malik is England, Waqar is Sri Lanka, Misbah is Sri Lanka, Wasim is England. This is how it is. It's 50-50 today. Interesting times on expert predictions brought to you by Olivia. Shukriya. So this is how it is. Now the question is कि ये एक दूसरे के हो तो गए, अब नुकसान कौन भरेगा किसका? क्या नुकसान? आप भरेंगे. मैं तो भर दूंगा. मैं क्या भरूंगा? आप भरेंगे. मैं भर दूंगा. चलो 10-12 पराठे एक्स्ट्रा लगवाता हूँ मैं तुम लोगों के. Deep down जिसने दूसरे के लिए कहा है, he probably thinks that ये होगा. That is interesting. All right, guys. नहीं, आप ये गलत सोच रहे हैं. मैंने इंग्लैंड बोला उनके लिए, but deep down I think England will win. Yeah. We have a very long day today, folks, because अभी ये होगा जो हमारा ये खत्म होगा सेशन, उसके बाद पोस्ट मैच आएंगे, फिर पोस्ट मैच के बाद हम यहीं पे रुकेंगे स्टूडियो में और सुबह 3 बजे दोबारा बराह रास्त आप लोगों की खिदमत में आएंगे. What?
3:30 बजे। अभी रूम है ऊपर इधर। रूम सोफों पे सोएंगे। So it's a long day for us here at the Pavilion. Basically हम Pavilion में ही होंगे। आज मुश्किल है यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी। आपकी सारी मीटिंग्स कैंसिल। जी मेरे से ज़्यादा तो आपकी ही हैं। मुझे पता है सारी रिपोर्टें हैं हमारे पास। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा रुकता हूँ मूवमेंट पिक में और वो मुझे बताते रहते हैं कौन कहाँ आ रहा है, जा रहा है। राइट। क्योंकि मैंने फौरन देखा है। नहीं तो नहीं पूछा। Why would you want to know this? Yeah. And why would you disclose our location to start with on TV, by the way? You don't need to say that. That's just. अपने मुल्क में रह के आप डर रहे हैं? अपने मुल्क में रह के आप डर रहे हैं? नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। हम अपने मुल्क में रह के बिल्कुल भी नहीं हुआ है। All right, folks. Thank you very much, Misbah. Thank you, Shoaib. Thank you, Waqar. Thank you, Wasim. We are going to see you on the other side of the game. Keep watching eSports, 10 Sports, and the ARY's app. We'll see you in the Pavilion after the match.